اپنی صداقت کو منوایا اپنے کردار سے کہ مجھ سے بڑا امین کوئی نہیں، مجھ سے بڑا صادق کوئی نہیں۔ اب جو جتنا بڑا امانت دار ہوتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے کہ جو میرے بعد آئے وہ میرے جیسا امانت دار ہو، امین ہو۔ اور مجھے عزت حیدر کی قسم، میرے نبی نے ہجرت کی شب علی سے یہ کہہ کے اپنے بستر پر سلایا کہ آج میرے بستر پر سو جا اور کل کو میری رکھی ہوئی امانتیں، میرے پاس رکھی ہوئی امانتیں لوٹا کے آ جانا۔ میں پوری توجہ سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے چھوٹی سے چھوٹی، جھوٹی سے جھوٹی ایک روایت دکھا دو کہ نبی نے علی کو بلا کے کہا یہ وہ فلاں کے اتنے پیسے ہیں، فلاں کے اتنے ہیں، فلاں کے اتنے ہیں، فلاں کا سونا ہے، فلاں کا چاندی ہے، کچھ نہیں کہا۔ کہا امانتیں ہیں یہ، لوٹا کے آ جا۔ علی نے بھی نہیں پوچھا کس کس کو دینی، نہیں پوچھا کس کس کو دینی ہے، نہیں بتایا کس کس کو دینی ہے، نبی نے نہیں بتایا، علی نے نہیں پوچھا، نبی چلا گیا۔ علی نے اس کو لوٹائی تو اب ایک ہی بندہ تھا جو علی رسول کے دل کے بات جانتا تھا کہ اس کے پاس کس کس کی امانت ہے۔ اچھا وہ صادق رسول جس نے منوایا، مجھے عزت رسول کی قسم اپنی زندگی میں میرے نبی یہ فرما کے گئے ہیں کہ ایک میرا چھٹا نائب ہوگا۔ اور نے کیا، پیغمبر نے فرمایا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ میرا ایک چھواں نائب ہوگا، نام اس کا جعفر ہوگا، لقب صادق ہوگا۔ اور نبی اور صادق علیہ السلام کے درمیان فاصلہ دیکھ، اور نبی آج بتا رہے ہیں کہ علی کے بعد حسن آئے گا، حسن کے بعد حسین آئے گا، حسین کے بعد جناب سجاد آئیں گے، سجاد کے بعد باقر آئیں گے، پھر جعفر صادق علیہ السلام آئیں گے۔ اتنے عرصہ پہلے پیغمبر کہہ رہا ہے میرا چھٹا نائب آئے گا تو اس کا لقب صادق ہوگا۔ اور پیغمبر کا اپنے زمانے میں آنے والے امام کے لیے یہ کہنا کہ اس کا لقب صادق ہوگا، پوچھا پیغمبر نے کہا میں نے اس کا عرش میں پڑھا ہے، پہلے ہی دن اس کا لقب اللہ نے صادق کر دیا۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی سے لے کر مہدی تک علیہ السلام، ان کا نہ نام کسی نے رکھا، نہ ان کا لقب کسی نے رکھا، نام بھی دے کے بھیجا، لقب بھی عطا کر کے بھیجا۔ گفتگو سمجھے؟ اور جعفر کہتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے، اور اس نہر کے بارے کہا شیرین ہے، میٹھی نہر، میٹھا پانی۔ اور اس کی توضیح کی ہے علماء نے کہ میٹھی نہر سے مراد ہے کہ جعفر صادق اپنے علم سے، جیسے نہر سے لوگ پانی سے سراب ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ کے علم سے لوگ اپنی علمی بات پیاس بجھایا کریں، پیاس بجھائیں گے علمی۔ اور آپ جانتے ہیں ایک ہی وقت میں میرے چھٹے امام کے 4000 شاگرد تھے۔ کتنے تھے؟ 4000۔ ایک وقت میں 4000 شاگرد تھے، جس میں بڑے بڑے کیمیا دان جسے بابا کیمیا بھی کہتے ہیں، اور بڑے بڑے
बड़े साइंसदान और बड़े बड़े जुग़राफिया दान, बड़े बड़े तारीख दान हुए हैं। कितने थे? 4000। और तो नहीं हो रहे 4000। और ये जो 4000 थे ना, ये कच्ची पक्की के तालिब इल्म नहीं थे। इमाम के पास आके कहते थे हमें अल्लाह बेटे से पढ़ा दे, क्या 1 दूनी 2 दूनी 4 पढ़ा दे। मैं अपने इमाम की खुशामद में नहीं कह रहा, मैंने ये पढ़ा है इमाम के पास पढ़ने वाले उस वक्त के कम अज कम वो MA के लेवल के थे, वो MPhil के लेवल के बराबर थे, वो PhD के बराबर थे, पढ़ने वाले थे 4000। एक मजमून नहीं था। आज के जदीद ज़माने में हमारी यूनिवर्सिटी है ना एग्रीकल्चर, जहाँ चले जाओ, जिसने रियाजी पढ़ानी है ना वो उर्दू नहीं पढ़ा सकता। जो फिजिक्स पढ़ाता है वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता। केमिस्ट्री का प्रोफेसर और है, फिजिक्स का और है, मैथमेटिक्स का और है, बायो का और है। अलग अलग है मास्टर, अलग अलग है प्रोफेसर। केमिस्ट्री वाले को कहे बायो पढ़ा दे, कहे नहीं। बायो वालों का फिजिक्स पढ़ा दे, कहेगा नहीं। मैथ वाले से ये कह दो कि नहीं तुम वो फला अलजेब्रा दूसरा पढ़ा दे, नहीं पढ़ाएगा, उन्हें आता ही नहीं। अरे देख अपने इमाम का इल्म, 4000 पढ़ने वाले थे और जिन्होंने रिसर्च की है उनकी रिसर्च के मुताबिक इमाम का इल्म का है आपका नहीं कि एक ही वक्त मेरे छठे इमाम 500 उलूम के माहिर थे। 500 उलूम के। अगर आज भी गिनना शुरू कर दे तो 500 बड़ी देर बाद पूरा होता है। गिनना शुरू कर देना, 500 की फिगर ही पूरी नहीं होगी। 500 बहुत बड़े होते हैं, 500 के माहिर थे। पढ़ने वाले 4000 थे, पढ़ाने वाला सिर्फ एक था। उनकी तलब में कमी थी, मेरे मौला की अता में कमी नहीं। मैंने कहा नहीं ये मैं फारसी नहीं पढ़ा सकता, या मैं बायो नहीं पढ़ा सकता, कीमिया नहीं पढ़ा सकता। सबको पढ़ाते थे और फिका अलग थी। फिका के भी मास्टर थे, फिका के भी बानी थे, इमाम थे, क्योंकि ये फिका तो इनके घर की थी, शरीयत तो नाने की थी। और एक बहुत बड़े फकीह उस वक्त के, नाम लिए बगैर ही, बहुत बड़े फकीह। वो फकीह एक दफा मेरे मौला के पास आए और गुलामों से कहा कि इमाम से कहो मैं आया हूँ, मुझे इजाज़त चाहिए। इमाम ने कहा इजाज़त नहीं, से क्या वापस चला जाए। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की। कोई इजाज़त नहीं, वापस चले जाओ। और इतने में कुछ मोमिनीन आए, मोमिनीन ने इजाज़त मांगी, मौला ने कहा इन्हें आने दो। तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे, जिसको कहा ना आए ये फकीह था। कोई अपने जमाने का इमाम था, फकीह अपने जमाने का इमाम, यानी उसे इजाजत नहीं दी, आम मोमिनों की इजाजत दे। अब देख तेरे इमाम की निगाह में उसका क्या मकाम है, जिन्हें इजाजत दे रहा है उनका मकाम। वो भी आ गया। इसका मतलब पता क्या है? अरे मोमिन ऐसा ही है कि इनका भी सहारा ले लो तो तुम आगे आ जाते। अरे मोमिन तुम्हें इमाम तक ले जा सकता जो खुद अमीर अल मोमिनीन हो।
आधा घंटा हो गया। अब जब वो आ गया ना, उसने आओ देखा ना ताओ देखा। उसने कहा हमारा इधर जहाँ आप तशरीफ़ फरमा है वहाँ बाहर से भी बड़े बड़े उलमा आते हैं और आप आकर मिंबर पर बैठ के बड़े बड़े कबायर लोगों के बारे ये कहते हैं, फला कहते हैं, उलमा के खिलाफ, सहाबा किराम के बारे वो तानो तशरीह कहते हैं। आप उनके खिलाफ फतवा दें, आप उनको रोकें, आप उनको सजा दें। 3 बातें कहें जो गलत गलत बातें कहते हैं, इशारा देते हैं। आप उनके खिलाफ फतवा जारी करें, आप उनको सजा दें, आप उनको रोके, मना करें। इमाम ने कहा ना सजा दूंगा, पता नहीं क्या चल रहा है, ना सजा दूंगा, ना रोकूंगा, ना फतवा दूंगा। कहा मौला क्यों? कहा अगर मैं फतवा भी दे दूं, अगर मैं रोक भी दूं, अगर मैं सजा भी दूं तो कौन मेरी बात मानेगा? देखो एक मैं बरीक सी फिक्र देती हूं, कौन मेरी बात मानेगा जब मेरी बात किसी ने माननी नहीं? मौला ने फरमाया अपने फतवे को ऐसे ही जाया कर दूं, सजा को ऐसे ही जाया कर दूं, ऐसे ही रोक दूं जब किसी ने माननी नहीं? फकीर ने कहा मौला लाखों की तादाद में आपके मानने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके मुहिब हैं, ये कैसे हो कि आप फतवा जारी करें तो वो आप माने ना? वो इमाम ने फरमाया तू भी तो लोगों को कहता है ना मैं जाफर सादक का शागिर्द हूँ। तू भी तो बाहर कहता फिर रहा है ना मैं जाफर सादक का शागिर्द हूँ, मैं जाफर सादक का मुहिब हूँ, मैं जाफर सादक का मानने वाला हूँ। अरे जब तूने मेरी बात नहीं मानी, शागिर्द होकर अपने आप तो मैं मुहिब हूँ, मानने वाला तू नहीं मानता तो दूसरा तो कहा मौला मैं तो आपकी बात मानता हूँ। मेरे मौला ने कहा मैंने तुझे रोका था ना अंदर ना आना, तू आ गया। मैंने इजाजत नहीं ना दी थी, तू आ गया, फिर आ गया और आते ही तूने सवाल कर दिया ना, मैंने सवाल की इजाजत दी, तूने सवाल कर लिया। पूरी तवज्जो, आता ही पूछने लगे, आते ही क्या पूछने लगा? इमाम ने फरमाया देख मैं तुझसे एक बात करता हूँ, मैं कभी ना तुझसे बात पूछता, अगर तू मेरी बात मान के ना आता। मैंने सुना तू फतवे देता है, मैंने सुना तू फतवे किससे देता है? कहा कुरान से। इमाम ने फरमाया अगर कुरान में तुझे वो चीज ना मिले, इमाम ने नहीं यह कहा अगर कुरान में वो चीज ना हो, कुरान में ना होना और है ना मिलना और है। अगर तुझे कुरान से ना मिले तो कहा मैं हदीस से फतवा देता हूँ। इमाम ने कहा अगर वो चीज़ तुझे पैगंबर के फरमान में ना मिले तो फिर? कहा फिर मैं अपने क़ियास से फतवा देता हूँ। इमाम ने फरमाया था दही पे फर्क है, तुझे पता नहीं अव्वल मन का सफा हुआ बिलीसो, जिसने सबसे पहले क़ियास किया वो तो बिलीस था। तू क़ियास से काम लेता है, चलो ऐसे कर तू अपने क़ियास से काम लेकर बता दे। मुझे एक बार तुझसे पूछता हूँ, बता नमाज अफजल अमल है या रोजा? तंग तो नहीं पड़ रहा है? नमाज अफजल अमल है या रोजा? इमाम ने पूछा तो हमारे इसमें कोई शक है? अफजल तो नमाज ही है ना, रोजा तो नहीं ना। इमाम ने फरमाया ठीक अपने क़ियास से काम लेकर बता, तेरे नज़दीक नमाज अफजल है रोज़ा?
क्या मतलब है? बता, महीने में औरत पर कुछ दिन आते हैं, उन दिनों में नमाज उससे साकत हो जाती है, जब पाक हो जाए तो भी साकत। नमाज की छुट्टी है, दौराने टाइम भी छुट्टी, बाद में भी छुट्टी, जबकि रोजा उतने पीरियड के लिए छुट्टी है, बाद में कज़ा है, कज़ा है। और अगर तेरे नजदीक नमाज बड़ा अमल है तो बड़े की कज़ा क्यों नहीं, छोटे की कज़ा क्यों है? तो मेरी बात समझ आ रही है सबको? पता चला नमाज जो तेरे नजदीक बड़ा अमल है, फिर नमाज की कज़ा क्यों नहीं? रोजा छोटा अमल है तेरे नजदीक, उसकी कज़ा क्यों है? कहा बोला ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस बात का तो इल्म नहीं, आप फरमा दे। इमाम ने उसका जवाब दे दिया कि ये जो नमाज है पूरा महीना पढ़ी जाती है, दूसरा महीना भी तेरे सारा साल ही पढ़ी जाती है। रोजे सारा साल नहीं रखे जाते, रोजा सिर्फ एक महीने के लिए है, और लिहाजा अल्लाह ने जो थोड़ा था उसे कहा कि इसे फिर भी रख। दूसरी तो जी इमाम ने फरमाई कि नमाज उन दिनों में जब नहीं पढ़ी जाती तो बाज़ अमूर भी औरत नहीं करती, उसे छूट जाते, लेकिन बाद में फिर दो काम करने पड़ेंगे, उसे कज़ा भी देनी पड़ेगी, जो अदा है वो भी पढ़नी पड़ेगी, और इसने कई अमूर करके करने होंगे, ये तो बेचारी कर नहीं सकेगी। समझ? अच्छा चले, ये नहीं तुझे आई एक बात और बता, कत्ल बड़ा है या बदकारी? ज़िना बुरा और बड़ा अमल क्या है, कत्ल या बदकारी? मुझे तो कहा मौला इसमें तो शक है, कत्ल ही बड़ा है ना, बदकारी तो छोटी है। चलो अगर से वो भी बड़ी बात है ज़िना करना, लेकिन कत्ल तो उससे भी बड़ा है। इमाम ने फरमाया अगर तेरा कियास ये कहता है कि कत्ल बड़ा है, ज़िना छोटा है, तो फिर बता कत्ल के 2 गवाह क्यों है, बदकारी के 4 क्यों है? कत्ल के 2 गवाह, बदकारी के 4। मेरी बात अगर समझ रहे, बदकारी के 4 गवाह है, 2 नहीं। कहा अगर बड़ा कत्ल है तो 2 क्यों, बदकारी छोटी है तो 4 क्यों? मौला इसका भी मुझे नहीं पता, आप बता दो। इमाम ने फरमाया कत्ल के 2 गवाह इसलिए हैं कि जुर्म एक करता है, मकतूल का कोई जुर्म नहीं, कातिल एक है, कत्ल एक करता है, जुर्म एक का है, और बदकारी में दोनों मुजरम होते हैं, दोनों गुनाहगार होते हैं, लिहाजा दो उसकी तरफ से, दो उसकी तरफ से। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, तो ये बड़े सवाल हैं काफ़ी। एक सवाल आपसे करके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैंने ने कहा चल छोड़, अपने क्या से बता, वो कौन सी बात है जिसकी इब्तदा कुफर इंतहा ईमान? वो कौन सी ऐसी बात है? बिस्मिल्लाह, जिंदा साहब तशरीफ लाएं, किसे तो सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। वो कौन सी कलाम, कौन सी बात है जिसकी बात इब्तदा ऐन ही कुफर और जिसकी इंतहा ऐन ही ईमान? कहा मौला वो कौन सी बात होगी जिसकी इब्तदा कुफर हो और इंतहा ईमान हो? इमाम ने कहा कलमा भी भूल गया,
چھوڑتا ہوں۔ وہ چلا گیا، وہ منصور تھا اس وقت، اس نے کہا کوئی یار ایسی بات بنا، یہ صادق لاجواب ہو، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو۔ انہوں نے مل ملا کے اسے کہ اس کا شاگرد بھی ہے، عالم بھی بڑا ہے، اسی سے اس بات انہوں نے کہا میں اتنا روپیہ خرچ کروں گا تجھ پر کہ تجھے امام بنا دوں گا۔ صادق کو لاجواب کرتے، یہ بھی دنیا معصوموں کو لاجواب کرتے کرتے خود لاجواب ہو۔ اچھا اس نے ٹائم لیا، مہینہ چاہیے دو، اس نے بڑی مشکل سے نا کچھ سوالات تیار کیے۔ کہا مولا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے وقت نہیں مانگا، اس نے سوالات بنانے کے لیے وقت مانگا۔ امام نے جواب کے لیے وقت نہیں مانگا، کہا پوچھ۔ اس نے کہا مولا یہ بتا ذبیحے اور مردار میں کیا فرق ہے؟ ذبیحہ سمجھتے ہیں؟ اور ذبیحہ جسے ذبح کیا جائے اسے ذبیحہ کہتے ہیں۔ مولا یہ ذبیحے اور مردار میں کیا فرق ہے؟ امام نے کہا خون کا فرق ہے، لہو کا فرق ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا ذبیحہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا لہو باہر نکل جاتا ہے، اور مردار جو ہے اس کا لہو باہر نہیں نکلتا، اندر ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے چونکہ لہو کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے ذبیحے اور مردار میں صرف خون کا فرق۔ اس نے جب سے کہا مولا یہ خون کو حرام کر کے اتنا بڑا جانور اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ جب جانور مر جاتا ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکرا مر جاتا ہے تو وہ بھی حرام، تو یہ اللہ خون کو بھی حلال قرار دے دیتا۔ امام نے فرمایا اللہ ہے، خون میں 3 مفسدات ہیں، یعنی اس میں 3 خرابیاں ہیں یا 3 بیماریاں ہیں۔ آسان کرتا ہوں، اگر وہ حلال کر دیتا تو اس میں بیماریاں تھیں۔ سن، جو خون پیے گا کھائے گا اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اور جو خون پیے گا وہ کسی القلب ہو جائے گا، یعنی سخت دل کا مالک ہو جائے گا، اس کے دل میں رحم نہیں رہے گا۔ اور جو خون کھائے گا پیے گا، امام نے فرمایا اسے برس اور جزام کی بیماری ہو جائے گی، اس لیے اللہ نے بندے پر حرام کیا ہے۔ سنیں بات، اچھا مولا ایک بات میں اور پوچھتا ہوں، میں 2 باتیں کرتا ہوں، سوال پوچھنے بڑے پیار کیے تھے۔ کہا مولا یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں نا، اس پر ذرا غور کریں، یہ میری بات بھی ہو جائے گی، فضائل بھی ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں نا، یہ عمل میں بڑے سست ہیں۔ جو آپ کے مخالف ہیں یہ عمل میں بڑے سست ہیں، بھاگ بھاگ کے عمل کرتے ہیں۔ جو آپ کے عمل ماننے والے ہیں یہ اعمال میں سست ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ امام نے آپ کا دفاع کیا ہے، امام نے آپ کا دفاع کیا ہے، لیکن دفاع سے مراد یہ نہیں ہے کہ عمل کرنے نہیں۔ اگر تم کرتے اس وقت کے مومن تو وہ کبھی نہ کہتا۔ کہا آپ کے ماننے والے اعمال میں سست ہے اور آپ کے مخالف اعمال میں چست ہے۔ امام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جب ہمارے ماننے والوں کے عقیدے کو خراب کرتا ہے تو ہمارے ماننے والے اپنے عقیدے کو خراب نہیں ہونے دیتے، وہ شیطان کے چنگل میں نہیں آتے۔ لہذا جب ان کا عقیدہ نہیں خراب، عقیدہ ان کا صحیح ہے، تو پھر وہ ان کے عمل پہ حملہ کرتا ہے۔ عمل میں وہ کچھ کامیاب ہو جاتا ہے، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ ہمارے ماننے والے عمل پہ پیرا رہتے ہیں اور کچھ اس کے دھوکے میں آ کر تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ماننے والے نہیں، وہ مخالف ہیں، جب وہ اس کے عقیدے
जाता है तो वो उनके अकीदे को बर्बाद कर देता है, फिर उनके अमाल की तरफ वो तवज्जो नहीं करता। कहता है कि जिनका अकीदा ही खराब है उनके अमाल का क्या फायदा। जिनका अकीदा ही खराब है, मैंने उनके अमाल को क्या कहना। अमाल का ताल्लुक तो अकीदे से ही है, अकीदा ही नहीं तो अमाल कैसा। अब आप खुशकिस्मत हैं कि आपका अकीदा अच्छा है। जिनका अकीदा अच्छा है उनका अमल भी अच्छा होना चाहिए। अब दो सवाल और बस आपसे किबला सब कुछ लिखे। जब पूछना ना सुना उसने कहा मौला एक बात आओ, ये जो आप सादात बनी फातिमा है ना, ये आप बड़ा फख्र करते हैं कि हम सैयद, हम औलादे फातिमा। सारे आदमी की औलाद नहीं, ये औलादे फातिमा होना क्या ऐसा फख्र की बात है। सारे बाबा जी की औलाद, तो ये आपकी नस्ल, आपकी औलाद सैयद जो औलादे फातिमा, ये तो फख्र क्यों करते हुए पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। खुदा की कसम जो तफाएगा, ये जवाब मेरा नहीं, ये दाद मुझे नहीं इमाम को देनी है। कहा फिर ये अपने आप को बनी फातिमा होने से पर क्यों फख्र करते हैं औलादे फातिमा, जब सारे बनी फातिमा। मेरे मौला ने फरमाया जब सारे आदम की औलाद है तो तूने कभी देखा हर किसी ने हमारे शजरे में दाखिल होने की कोशिश की है। और हर कोई हमारे शजरे में दाखिल होने की कोशिश करता है। अरे कोई मरासी भी हो तो सैयद बनता है, राना हो तो सैयद बनता है, राजपूत तो सैयद बनता है। इमाम ने फरमाया लोग हमारे शजरे में दाखिल होते, हम तो किसी के शजरे में दाखिल। कहा इससे बड़ा फख्र क्या है कि लोग सैयद बनने की कोशिश करते, हमने कभी उनमें दाखिल होने की कोशिश नहीं की। आखिरी सवाल और आपसे इजाजत। कहा मौला एक बात बताइए, जो अमाल है, अमाल ये अमाल मादी होते हैं या रूहानी? रूहानी वो चीज़ है यानी जिसको देखा नहीं जा सकता, रूहानी से तल्लुक। मादी चीज़ वो भी होती है जिसे टटोला जा सके, जिसे पकड़ा जा सके, देखा जा सके। इमाम ने फरमाया ये अमाल जो है ना, ये मादी तो है, ये तो रूहानी है। उसने जग से कहा अगर अमाल रूहानी है तो ये जो क़यामत के दिन अल्लाह ने कहा कि हम मीज़ान लगाएंगे अमाल को तोलने के लिए, हम क़यामत के दिन मीज़ान लगाएंगे जिसमें अमाल तोले जाएंगे। जब ये मादी नहीं, और मादी समझ गोश्त तोला जा सकता है, दाने तोले जा सकते हैं, चीनी तोली जाती है, चने तोले जा सकते हैं। कहा जब ये अमाल है ही रूहानी, मादी है ही नहीं, तोले कैसे जाएंगे? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया आपके चेहरों पर भी नूर बिखर जाएगा। इमाम ने फरमाया सुन, ये जो क़यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे ना, इनके लिए मीज़ान नहीं लगेगी। जैसे तू मीज़ान समझा तराजू है, अरे क़यामत के दिन जिन अमाल को तोला जाएगा ना, उस मीज़ान का नाम है हमारे दादा अली की विलायत। सरकार की आमद, लंठौर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल,
मरवा जैसे तोप के बराबर सोना खैरात करे, साई करता हुआ दरमियान में हालत मजलूमी में मर जाए, अगर उसके दिल में मेरे भाई अली की विलायत या मोहब्बत नहीं, जन्नत जाना तो दूर की बात है, खुशबुए जन्नत भी नहीं पा सकेगा। बस मौला आपकी ये मेहनत जो है समाप्त कबूल फरमाए और मेरा पढ़ा भी कबूल फरमाए। ये एक दुआ है जो मेरे जुम्मे हैं, ये सैयद यासिर हुसैन शाह साहब काज़मी उनके हैं मुझे वो काज़मी के मुझे के वालदैन के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालदैन की बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, मकाम आलमी जगह अता फरमाए, क़ुर्ब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए। और आज की मजलिस का उन्होंने एहतमाम किया है, इसको अपनी बारगाह में मौला कबूल मंजूर फरमाए, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, उन्हें आफ़ात महफूज व महमूद फरमाए और इसी तरह खिदमात दीनिया बजा लाने की उसकी इस तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और जितने मुमिनीन यहाँ पर आए हैं मौला सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, सब की शरई हाजात को पूरा फरमाए। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।